Hi everyone. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes. So, did everyone create their developer edition also? Yeah, was able to do it successfully yesterday. Okay. Anyone faced any trouble? No, not my side. Okay then. Okay. So today I'm gonna explain about. I'm gonna go through the syllabus of this training. Okay, and explain you what all we are gonna learn in this whole training. Okay. Let me know once the screen is visible. Yeah, it's visible. Okay. So for the first 7 weeks, we are gonna learn about the admin skills of the Salesforce. Okay, so in this 7 weeks, what all you will be learning is like what is Salesforce, okay, and what all admin tasks we can perform. Like for example, creating the custom objects, creating the custom fields. Okay, you're gonna learn about what all types of fields are available, what all types of fields are you can create. Okay, and what are the benefit of each and every field, and then there is some relationships available between the objects. Okay, there are three types of relationships: master, detail, lookup, and self relationship. Okay, so I am going to explain about what are the benefit of each relationship and when to use which relationship in practical. Okay, and then I will be explaining about UI customization. Like in UI you can add new tabs. Okay, how to add new tabs, and page layouts is there. Okay, so all these things you will be learning about. Okay, then another chapter is then you will be learning about the data management. Okay, like how to query the data and extract the data. Okay, retrieve the data and all those things, and then security model will come into picture like OWD. Okay, profiles, roles, permission sets, everything we will be learning. And then automation tools like Flow, Workflow, okay, those things you will learning. Approval process you will be learning here in this. So then reports and dashboards. So this should be it for the admin part, and then in the Sales Cloud and service applications, you will be learning a brief about what all Sales Cloud things we can perform in the admin part, and what all service applications we can perform. Okay, so in all, if I say in the first 7 weeks, you will be uh, you should be good in all the admin tasks, and by admin tasks, I mean without writing a code, what all operations can you do? Okay, in Salesforce, and to be fair, there are many jobs in market that are hiring for the admin persons only. Those don't need the Salesforce developer, but they need Salesforce admin. Okay, so that role is also there in the market. So by after first 7 weeks, you can apply for those roles. Okay, in Salesforce admin role you can apply, and then and you can see what all types of questions they are asking in the interview. Okay, so it will be like a whole like without coding, like drag and drop kind of things you will be doing here and there, and what all type of security you will be good into learning about the security things and everything. So is this clear?
like what all things you'll be doing in the admin part. Yes. Yeah. Okay, then comes the 4 weeks of development training. Okay, here I will be teaching you about first of all what are the programming basics. Okay, and then I will like in programming basics it will be like what are data types. Okay, what are keywords? What is a variable? Okay, all these things I will be explaining you. What is a class? What is a method? Those things you will be learning, and then I will be teaching you about the Apex. Okay, in Apex, what is SOQL, what is SOSL, what is collection, like list, queue, and map, what are those? Okay, so those things you'll be learning in the Apex thing. Okay, and then I will be teaching you about what is the governor limit in Apex. Okay, while writing the Apex class, then triggers will come into picture. Triggers is nothing but an alternative for the flows. Okay, so then while teaching triggers, I will be teaching you why, when to use a trigger and when to use a flow. Okay. So, but nowadays triggers are use of triggers are getting reduced as most of the tasks that we perform using triggers is getting done using the flow. Okay. So that is one of the reason. That is one of the thing which I want to tell you upfront. With, but in the interview, every company, whenever you give an interview, they will surely ask you about these triggers and Apex class. Like a basic trigger, they will ask you to write. They will give you some scenario and ask you to write the trigger code. Or okay, so that's why you should be learning about these triggers and Apex classes. And then comes the asynchronous Apex. So what is asynchronous Apex? If I can tell you in a simple words, is like whenever there is a deadlock situation, then we use the asynchronous apex. So I'll be teaching you about what is a deadlock situation, okay, and what all types of asynchronous apex are there. I'll be teaching you all about it, okay. And then what are the test classes and what are its uses? Okay, so in the after the those 4 weeks, you will be good with the what you say development part of the Salesforce also. So with after these 11 weeks, you would be good with the beginner level interview. You should be good by clearing the beginner level interview questions. Okay, and get the job. Okay, so because if you apply for Salesforce developer role, okay, these are all the things they will be asking you. But if you say you have a 2 years of experience, then the remaining course is there for what you say a remaining 7 week course. Okay, that is for the LWC and JavaScript. For experienced employee, they ask you that you should be knowing this LWC also. Okay, and in this syllabus, we haven't mentioned the, if I am not wrong, we haven't mentioned- yeah, Salesforce integration is not mentioned. So, but I will make sure I'll be teaching in the development phase only. I'll be teaching you about the Salesforce integration as well, like basics of the Salesforce integration. Because if we go into deep into the Salesforce integration, then it will be again a long thing. Okay, but I will make sure like I give you the basic idea about what is the Salesforce integration, what is the basic syntax of writing the integration class. Because that is another thing in interview that the interviewer will be asking you. Okay, and then in LWC, I'm teaching about the what are the basics of. So LWC is nothing but if you has anyone here not heard about the HTML, CSS, and JavaScript ever? Means I'm not asking if you know what it is, but you haven't heard the name of it also. Is there anyone like this? Hello.
No, no, I think aware of it, but haven't used it, to be very honest. But हाँ, okay, aware of it, मतलब what it is. Yeah, मतलब नाम तो सबने सुना है ना कि yeah, yeah, HTML CSS yeah. और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। कोई मतलब तो आपको देखो LWC में क्या होता है आपका, ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके ना हम अपने सेल्सफोर्स में एक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है। तो अब वो कैसे बनता है, उसको कैसे लिंक करते हैं सेल्स फोर्स के साथ, है ना, और Okay, उससे हम एपेक्स क्लास को कैसे कॉल करेंगे, वो सब चीज आपको मैं अपकमिंग लास्ट 4 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। पर अब उससे पहले, अगर उसको सिखाने से पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में बेसिक कोड कैसे लिखते हैं, करेक्ट। तभी आप ये एलडब्ल्यूसी के कोड बना पाओगे। अगर आपको बिल्कुल जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती किसी को, अगर तो वो एक एलडब्ल्यूसी कर नहीं सकता। तो देखो HTML CSS का बेसिक सीखना 2-4 दिन का काम है, वो हो जाता है। पर जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो उसका आपको बेसिक आना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट 3 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग दी है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसको यूज करके आगे जाके हम एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट्स बना सके। और फिर हम सारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स आपको बनाना सिखाएंगे। और एक लास्ट में आपका, हर एक डोमेन के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है। right. जिस प्रोजेक्ट के साथ आपको एक बेसिक आइडिया होता रहेगा कि हाँ, मतलब आपको भी एक ना कॉन्फिडेंस गेन होगा सबको कि हाँ, अगर जब आप खुद से एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके बाद ही मेरा मानना है कि ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। जब तक हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते खुद से, तब तक वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज भी शेयर करता हूँ हर एक डोमेन के अंदर कि मेरे को कैसे टास्क मिले थे। हाँ शुभम बताइए, आपने हैंड रेस किया था। Uh, One more thing, sorry, Ritik. So in this LWC syllabus, can we have that, or can we get the amount of knowledge where we can clear the LWC certification? That is the first question. Second one is, what about the Aura components? Are we going to cover that? जी, ओरा कंपोनेंट्स का आपको बेसिक इसमें सिखाया जाएगा, पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। मैं भी अब इंटरव्यू जैसे देता हूँ, ठीक है, तो पूछा जाता है एलडब्ल्यूसी और ओरा, आपसे चॉइस पूछेगा हमने किस पे वर्क ज्यादा किया है। ठीक है। Yes. आपको एक पे आपको बताना पड़ता है हाँ एलडब्ल्यूसी में मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ओरा पे ज्यादा है। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के बाद आप ये बोल सकते हो कि एलडब्ल्यूसी पे एक्सपीरियंस है। पर उसके बाद भी ये मैं सच बोलूंगा, इंटरव्यू को फिर भी एक्सपेक्टेड होता है कि आपको बेसिक नॉलेज ओरा की भी होनी चाहिए Yeah. एटलीस्ट। ठीक है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग के अंदर। Okay. And और वो सर्टिफिकेशन वाला पार्ट, हाँ सर्टिफिक मैं आपको उसके हिसाब से भी बताऊंगा कि सर्टिफिकेशन के लिए देखो, ये कोर्स जो है काफी प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है। Mhm. इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होगी, पर साथ साथ मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि इंटरव्यू सर्टिफिकेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसका मैं आपको Mhm. लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, एक मैं लिंक भी शेयर करूंगा हर एक ट्रेनिंग के बाद, जैसे एडमिन के बाद भी और आपका डेवलपमेंट के बाद भी, Mhm. कि इसके बाद आप कौन से सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए कहाँ से। 1-2-3 दिन, 1 वीक तक की आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ट्रेल हेड के थ्रू। ठीक है, Mhm. 1 वीक की प्रिपरेशन आएगी, पर उस प्रिपरेशन के अंदर भी अगर आप जब आपको लिंक से प्रिपेयर कर रहे हो, अब उससे भी आपको कुछ क्लियर नहीं होता। Mhm. ठीक है, उस लिंक में कुछ डाउट्स आते हैं आपको। Mhm. ठीक है, जब आप लिंक पढ़ रहे हो कुछ कर रहे हो, तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। पर देखो खुद से भी, ये मैं फ्रेंकली बताऊंगा, कि मैं हर चीज कोई भी आपको ट्रेनर नहीं होता, खुद से आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको सारे लिंक्स दूंगा, पर हाँ वो लिंक्स के ऊपर आपको जाके खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये बस Yes. होता है कि अगर जो मैंने आपको मटेरियल दिया है उसी के साथ आप सब चीज ही कर लोगे। पर वो एक ट्रेल हेड का लिंक तो आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए एक बार क्लियर करना ही पड़ेगा, ताकि आप Mhm. सर्टिफिकेशन आराम से क्लियर कर लो। One more thing, Ritik, in admin part, हाँ workflow and process builder are there. But हाँ if correct me if I am wrong, in sprint release 2023, I think they are going to deactivate that to workflow and process builder and introducing new one, I think.
Correct me if I am wrong. हाँ, they are deactivating it, but instead of those they are introducing मीन जो जो चीजें पहले वर्कफ्लो और प्रोसेसर में होती है ना, वो सारी चीजें वो उन्होंने उठा के फ्लोस में ही डाली, तो अब उसको फ्लोस ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो Okay. वो बस एक नेम का डिफरेंस रह जाएगा बस अब। पर फिर भी आपको आना तो चाहिए ना कि वो पहले क्या काम कर रहा था, ताकि वही चीज हम फ्लो के अंदर आके कर सके। तो इसलिए हम वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब कुछ कुछ कंपनी जो है, अब जैसे हम्म। कोई एक आप किसी एक कंपनी में आप गए, ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने अभी तक वो लेटेस्ट प्रिंट वाला जो सेल्स फोर्स है उसके फीचर्स अब तक उन्होंने एनरोल नहीं करे अपने सेल्स फोर्स में। तो वो लोग तो अभी भी यूज कर रहे होंगे प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो, या उसको उधर से उठा के माइग्रेट कर रहे होंगे फ्लोस में या ट्रिगर्स में, जिसमें भी करना होगा उनको। करेक्ट। तो अगर Yes. आपको किसी को कहीं से माइग्रेट करना है कि प्रोसेस बिल्डर से उसको फ्लो में डालना है, तो आपको दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए ना, कि फ्लो की भी और प्रोसेस बिल्डर की भी। तभी आप माइग्रेट इजीली कर पाओगे। Okay. तो इसलिए दोनों चीजें लर्न करने में हमारा नुकसान कुछ नहीं है, पर हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि वो अब आगे जाके फ्लोस बन जाएंगे। वो प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो अब हट के फ्लोस ही बन जाते हैं, बस उनको फ्लोस ही कॉल करते हैं। पर यार, दोनों चीज अगर नॉलेज अगर हमें होगी तो उसमें कुछ हम्म। हमारा नुकसान नहीं है, नहीं नहीं। है ना। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा थैंक यू। हूँ। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है? और एनी और द सिलेबस तो है ना सबके पास, कि हम सिलेबस में क्या क्या करेंगे, ये वाला सिलेबस सबके पास है? No, Sorry, Can we you don't mean to have. say this Word doc? हाँ, No, No, we we don't receive have. a PDF file, if I'm not mistaken, not exactly in the in this format. So it will be great if you could share this. हाँ, ठीक है, मैं आई विल स्पीक विद द कोऑर्डिनेटर, मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना। Yeah, I just have one query. I was just tallying the number of days and whether I mistaken it somewhere. It started off with 7 weeks, then 4 weeks, and then probably 5 or 4 is what. And the program that I remember it was 20 weeks, right? Is it tallying somewhere or are we having extra तो coverage सी as a part of this? ये हाँ, 20 वीक्स लॉन्ग कोर्स है, तो इसके अंदर कहीं पे हो सकता है इसमें कितनी मेंशन है देखते हैं। 7 4, और एक नीचे है 4 3, कितना हो गया आपका? 4 और 3 वीक्स, 7 7 14 एंड 4 18 वीक्स, तो ये भी हो ही रहा है आपका, करेक्ट। इसके Okay, सिलेबस के हिसाब से 18 वीक्स ही हो रहा है। पर रिमेनिंग जो 2 वीक्स और होती है ना, देखो, थोड़ा सा बफर हर कोई लेके चलते हैं सब, क्योंकि कभी right. कोई टॉपिक अगर होगा हमारे पास तो एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये तो ऐसा हमने लिख दिया कि एलडब्ल्यूसी आपका 4 वीक्स में No, खत्म no, करवा I देंगे। understand that. So हाँ, you mean to say whatever it is there, it will be part of this doc. Am I right? हाँ, करेक्ट, हाँ। Got it. So even if it goes probably a week here and there, that's absolutely fine. I just wanted to confirm that, is it exactly what, probably going to follow as a flow of training, as mentioned in this Word doc. So नहीं clear? नहीं, Yeah, yeah. हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बफर देखो हर जगह पे होता है, तभी तो बस Right, right, लिखा है इधर, तो हमने ये चीज तो बस, है ना। तो right, कभी right. कोई टॉपिक ज्यादा भी चला जाता है, कुछ होता है। Superb. और बीच में कभी कोई हॉलीडे सीजन आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कभी 1 2 दिन क्लास नहीं हुई, तो उस चक्कर में फिर रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, जब हॉलीडे सीजन के बाद वापस आए हम लोग, है ना। तो वो सब Right. चीजें होती हैं इसके अंदर। Just one more follow-up query. You here it is mentioned admin, right? You explained that, what kind of a role it will be aside coding, probably admin is one area of focus. Any other, like it will be a programmer or developer, right? That is what the second segment comes. Are there या any other डेवलपर। uh, categories of roles that within Salesforce that exist? हाँ, वो मैं अब मैं नेक्स्ट टॉपिक है भैया आज का, मैं आपको Okay. पूरा एक वो करियर भी दिखाऊंगा कि सेल्स में कितने सारे करियर्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। Okay, got it. और उसके बाद उसके लिए, और हर एक करियर के लिए ना अपने अपने सर्टिफिकेशंस बना रखे हैं, Right, right. ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, तो गूगल Sure, करते हैं sure. उसको। I don't want to digress from the topic. That answers my query. Thank you so much. हाँ, तो अब मैं वही है नेक्स्ट टॉपिक, मैंने वही सोच रहा था, मैं वो Yeah. भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या करियर्स होते हैं इसके अंदर। हम्म।
देखो ये सारे आपके करियर ऑप्शंस रहते हैं। एक, या तो आप सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। ओके। और ये यूएस की इन सब ने मीडियम से एवरेज सैलरी भी लिख रखी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना सैलरी पे कर हो जाती है सबको। पर ये यूएस के बेस पे है, तो इसको इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आप मेरे साथ सबको एक चीज पता होगी, इंडिया में और यूएस में लेबर लॉ और उस चीज में बहुत फर्क है। इंडिया में मेरे हिसाब से काफी जो पे स्केल है एम्प्लॉयज का, काफी कम है बाकी कंट्रीज कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में भी हम ये सोचे हैं कि 6,000 सीधे हम कन्वर्ट कर लें यूएस डॉलर्स में, और उतना हम सोचे उतना एडमिन को मिलेगा। उतना नहीं होता कई बार, उस इससे ज्यादा भी कई बार हो सकता है, कुछ कंपनी अच्छा भी देती है, ये मैं नहीं कहूंगा, कुछ कंपनी कम भी देती है, तो एवरेज जो है इससे कम हो जाता है 86 से, $86,000 से आप, ठीक है। तो एक सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हो या डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट का काम क्या होता है आपका कि वो कस्टमर के चैलेंजेस और डेवलपर्स को एक साथ मीट करेगा, ठीक है ना, दोनों को कनेक्ट करवाते हैं, कस्टमर को और आपका क्या नाम है डेवलपर जो भी डेवलप कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो पर्सन होता है उसको हम कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो उसके लिए अलग पाथ है पूरा कंसल्टेंट के लिए, उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, वो सब आप यूज कर सकते हो। फिर आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, इसके अंदर अलग टूल्स आते हैं, इसके अंदर आप रिपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा काम करोगे, ठीक है। सेल्स फॉर डिजाइनर रोल होता है, ठीक है, इसके अंदर विजन फॉर पेजेस या फ्लोस इन सब के ऊपर ज्यादा काम करते हो। फिर आता है आर्किटेक्ट। ये देखो आर्किटेक्ट क्या होता है, सब जितना मैंने देखा आर्किटेक्ट का काम बेसिकली क्या होता है, पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट ने आपको अपनी पूरी नीड बताई, तो उसका देखा आपके दिमाग में एक आर्किटेक्चर डायग्राम होती है। जैसे कि आप कभी कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आपने कोई कभी आपने कोई जैसे प्लॉट खरीदा, ठीक है, जमीन खरीदी हमने कोई, अब उस पे हमें एक घर बनाना है, तो आप सबसे पहले एक आर्किटेक्ट के पास ही जाते हो ना, या हमें एक बार ब्लूप्रिंट दे दो हमारा घर कैसा दिखेगा, एक वो तो एक आपको डायग्राम बना के दे देता है, या ये आपका इतना एरिया का रूम होगा, ठीक है ना, इतना क्रॉस इतना एक बेडरूम होगा, इतना क्रॉस इतना का दूसरा बेडरूम होगा, इतने का लिविंग रूम होगा, इतने वॉशरूम्स आएंगे, वो पूरे का आपको एक चार्ट बना के दे देता है, करेक्ट। हेलो। या हाँ। विथ तो यू। ये उसी हाँ, तो उसी बेसिस पे इधर भी आर्किटेक्ट का काम यही होता है कि हाँ इधर हमें इतने ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और ये हमारा फ्लो रहेगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा, है ना। वो पूरा आपको एक वो फ्लो या पूरे एक डायग्राम बना के देता है, फ्लो डायग्राम बना के देता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, और उसी डायग्राम को यूज करके फिर डेवलपर एडमिन सब लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। फिर इधर साइबर सिक्योरिटी के भी करियर्स काफी सारे हैं, फिर मार्केटिंग करियर्स हैं, ठीक है। सेल्स करियर बहुत सारे होते हैं, जिस इसके लिए आपको सीपीक्यू आना चाहिए, ठीक है। सर्विस करियर है, इसके लिए आपको सर्विस क्लाउड की थिंग्स होते हैं, लाइक ईमेल टू केस, वेब टू केस, ओके, सो ये सारी थिंग्स पे आपको वर्क करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब ये आपका सर्विस क्लाउड का बेसिकली स्पेशलिटी होगी, सर्विस करियर। सेल्स करियर आपके सेल्स क्लाउड की स्पेशलिटी होगी। मार्केटिंग करियर आपकी मार्केटिंग क्लाउड की होती है। ये तीनों तीन टाइप के मेजर क्लाउड्स हैं जो भी मार्केट में काफी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो इन तीनों के बेनिफिट अलग अलग होते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी में तो अलग ही थिंग्स आती है कि कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, कौन सा लाइसेंस का क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, उन तो इसके ना वो सारे लाइसेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज नहीं है हमारी ट्रेनिंग के अंदर। साइबर सिक्योरिटी करियर्स का भी हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। मतलब सिक्योरिटी थिंग्स पढ़ोगे, पर साइबर सिक्योरिटी काफी उसके अंदर डीप में जाता है। सिक्योरिटी के लिए ना, सिक्योरिटी के बाद भी उसके काफी एक एक चीज के डीप में जाएगा। एक जो लाइसेंस फील्ड है, तो उसका क्या किस टाइप के लाइसेंसेस होते हैं हमारे सेल्स फोर्स में, और उसका क्या यूज है, क्या नुकसान है एक लाइसेंस का, तो वो सब चीजें। तो उतना भी हम डीप में नहीं जाएंगे इस ट्रेनिंग में, तो इसके लिए अगर आप करना है तो आप आगे जाके और ट्रेनिंग कर सकते हो। पर ना ये जितने भी आपको मैं बता दूं, जैसे साइबर सिक्योरिटी करियर हो गया आपका, ठीक है, ये आपका सेल्स आर्किटेक्ट का करियर हो गया,
बिजनेस एनालिस्ट का करियर हो गया, ये सब करियर्स ना आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आर्किटेक्ट भी आप तभी बनोगे कि कोई कंपनी आपको सेल्स आर्किटेक्ट भी तब बनाएगी जब वो पहले ये देख लेगी कि हाँ इस एम्प्लॉय को डेवलपमेंट की या एडमिन की नॉलेज है और ये क्लाइंट से डील कर लेता है। ठीक है, क्लाइंट से इंटरेक्शन के भी इसके बाद एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद ही आप ये सब फील्ड में जा सकते हो। मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ आर्किटेक्ट, क्योंकि सेल्फ आर्किटेक्ट को क्लाइंट से डील करना भी आना चाहिए, डेवलपमेंट टीम से भी बात करनी आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये एक फ्लो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस फ्लो के अंदर हाँ डेवलपमेंट हो भी सकती। ऐसा नहीं है वो कुछ भी आपको डायग्राम बना के दे दे, फिर डेवलपर कहेगा कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है सेल्स फोर्स के अंदर। तो आर्किटेक्ट को ये नॉलेज भी होनी चाहिए डेवलपमेंट की भी, कि हाँ अगर मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ तो ये चीज सेल्स में पॉसिबल है। अ, अगर ये बात समझ आ रही है सबको कि क्यों सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए बाकी का चीज का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। या क्योंकि सिर्फ आर्किटेक्ट जो होता है ना, एक तरीके से आपका टीम लीड या फिर प्रोजेक्ट हेड होता है जब भी आप किसी क्लाइंट कंपनी में जाओगे। टीम लीड जो होता है ना वो सिर्फ आर्किटेक्ट रहता है। तो इसलिए तो अब टीम लीड है, अगर वो टीम लीड तो टीम लीड ज्यादा आपके डेवलपमेंट टास्क नहीं करेगा, पर अगर कहीं पे भी कभी कोई डेवलपर फंसेगा, उसको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो वो टीम लीड के पास जाता है। वो टीम लीड को इतना अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर उसका कोई भी टास्क आएगा और कोई से डेवलपर कहीं पे अटक गया तो उसके एरर को वो सॉल्व कर सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि देखो सोल्व एरर हर एक डेवलपर कर लेगा, पर वो एक्सपीरियंस के साथ होता है, कोई 2 दिन में करेगा और कोई 2 घंटे में कर देगा उसी एरर को सोल्व। करेक्ट। तो अब वही है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप उतनी जल्दी इश्यू सॉल्व कर पाएंगे। मेन टाइम कंस्ट्रेंट ही होता है डेवलपमेंट के अंदर। इश्यू सॉल्व एक फ्रेशर वाला डेवलपर भी कर लेता है और 10 साल एक्सपीरियंस वाला भी कर ही लेगा। तो ये आपको करियर समझ आ गए कि क्या क्या करियर्स हैं हमारे सेल्स फोर्स में, और क्या करेगा, क्या बेनिफिट है। Yes, Ritik. Yes. तो अगर आपको कोई इसके अंदर देखो क्या क्या आपको सर्टिफिकेशन आते हैं, जैसे इस पे आते हो सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। ठीक है, देखो एडमिनिस्ट्रेटर कितने सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले आएगा एडमिन, ठीक है, फिर आएगा एडवांस एडमिन, फिर उसके बाद आएगा बिजनेस एनालिस्ट, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर, मार्केटिंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, सीपीक्यू स्पेशलिस्ट। तो ये इतने सारे सर्टिफिकेशन है एडमिन एडमिन के लिए। ठीक है, तो टोटल अगर आपने 6 सर्टिफिकेशन पूरे कर लिए, पर ये हर देखो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको कुछ भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस एडमिन के लिए आपको मेरे हिसाब से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एडमिन के अंदर। ठीक है। सीपीक्यू स्पेशलिस्ट के लिए 0 एक्सपीरियंस, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, पर उसके लिए आपको सीपीक्यू की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट भी मेरे हिसाब से विदाउट एन एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। पर रहा प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर, इसके लिए आपको शायद चाहिए 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एडवांस एडमिन और प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर आप एक्सपीरियंस के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को, मेरा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है। So Ritik, it is mandatory to complete all this certification.
हेलो। हेलो। Hello. Yeah. Hello? Yeah, Hi, Ritik. you're audible. Yes, yes, tell me. Yeah, it is mandatory to complete all this certification. Nothing is mandatory, okay, for anyone. But it's a useful, okay, because with certification and I'm not saying मैं ये नहीं कर रहा कि इसी ट्रेनिंग के अंदर आपको सारे सर्टिफिकेशंस करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला एडवांस एडमिन हो गया, प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर हो गया, इन सब के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है इंडस्ट्री लेवल 1 या 2 साल की। ठीक है, हर सर्टिफिकेशन अपनी प्री रिक्विजिट होती है। तो अब ये ट्रेनिंग के अंदर आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस, करेक्ट। तो इसलिए पर होता क्या है, देखो सर्टिफिकेशन से अगर आपको सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो उससे ना एक हर ऑर्गेनाइजेशन को एक वो होता है, ठीक है, इसने एम्प्लॉय ने सर्टिफिकेशन क्लियर करा तो इसको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है इस वाले स्किल सेट की। तो इस सर्टिफिकेशन वो कुछ नहीं, एक आपको वो दे देगा, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, मतलब कंपनी को ये दिख जाता है कि हाँ इसको नॉलेज है। तो और ये फिर ये हमारे जो इश्यूज आएंगे तो बेसिक इश्यूज को सॉल्व कंफर्म है हम लोग ये कर ही लेंगे हमारे। तो उसके बेसिस पे कंपनी के लिए ना आसान होता है हायर करना। तो इसलिए वो सर्टिफिकेशंस ना आपको ना एक एज प्रोवाइड कर देते हैं बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरेटिवली आपके करियर में। Okay. ठीक है, तो इसलिए मतलब मैंडेटरी कभी कुछ नहीं होता, पर ये अच्छा रहता है आपके लिए। पर और आगे जाके होता क्या है, जब आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, तो ना आपको ना कंपनी भी कई बार वाउचर्स प्रोवाइड करती है कि कंपनी के लिए ठीक है आपको ये स्किल सेट आपने लर्न करा है और हमारे क्लाइंट को सर्टिफाइड एम्प्लॉय की जरूरत है। ठीक है, आप कह सकते हो कंपनी को ठीक है मेरे को नॉलेज है, पर ये जो एग्जाम है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, करेक्ट, क्योंकि $200 का एग्जाम होता है ऑन एन एवरेज। सारे एग्जाम $200 के हैं, कोई इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। Yes. 200 USD इसकी एवरेज फीस है। तो अब और ये छोटा मोटा है नहीं, 200 USD, क्योंकि अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो होता है 16,000 समथिंग। ठीक है, तो अब वो आपको वाउचर प्रोवाइड कर देगी कंपनी की, कहेगी ठीक है हम आपका ये एग्जाम की फीस हम बेयर कर रहे हैं, हम आपको वाउचर दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। पर हर कंपनी की एक कंडीशन होती है आपके लिए कि मान लो आपको कंपनी ने वाउचर दिया, आपने एग्जाम दिया पर आप फेल हो गए एग्जाम। ठीक है, तो फिर कंपनी की कंडीशन होती है विद इन अ मंथ आपको वो एग्जाम के लिए दोबारा से अपीयर होना है और वो एग्जाम को क्लियर करना है। पर जब आप दोबारा से अपीयर होगे आपको फीस जो एग्जाम की दोबारा खुद अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ेगी। ये मतलब हर कंपनी का रूल ऐसा नहीं होता, पर हाँ मैंने जिस कंपनी भी काम किया है सब में मेरा यही एक्सपीरियंस है, सारी कंपनी यही कहती है कि कंपनी कहती है हमने आप पे ट्रस्ट करके ठीक है आपने एंड में आपको वाउचर दिलवाया, आपने कहा आपको नॉलेज है, फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो अब आपको ये खुद से ही प्रिपेयर करो दोबारा और खुद अपनी पॉकेट से फीस भरो और एग्जाम दो और क्लियर करो उसको विद इन अ मंथ। ठीक है, और एक और चीज सेल्स में एक चीज अच्छी है, फर्स्ट टाइम अप्लाई की फीस जो होती है आपकी फुल फीस रहेगी वो 200 USD है जो भी एग्जाम की। पर जब सेकेंड टाइम देते हो ना किसी एग्जाम का तो ना फीस वो 50% कर देते हैं। कहते हैं ठीक है सेकेंड अटेम्प्ट है क्योंकि आपका, इसलिए हम आपसे 50% फीस ही लेंगे एग्जाम की। मतलब अगर आपको कोई $200 का एग्जाम है तो आपको $100 पे करने हैं उस एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो ये मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि क्योंकि देखो काफी हर चीज के ना लूप होल्स काफी सारे निकाल लेते हैं सब लोग। ठीक है, कि कोई कितने लोग ये भी कहेंगे कि हम आपका एक सर्टिफिकेशन क्लियर करवा देंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा आप खुद से ही देना एग्जाम तब भी दो, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट है। अगर एक बार आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना तो आपको सेल्स फोर्स मार्केट से भी, कई बार होता है सेल्स फोर्स पूरी मार्केट से भी आपको बैन कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा काफी केयरफुल है ना, जब भी आगे जाकर कभी कोई एग्जाम दो चीटिंग ना करो, खुद से जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है अब मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम। क्योंकि देखो इसके ना क्या होता है, डंप्स में आप ना डाउनलोड कर लो, 3 टाइप के एग्जाम होते हर एक सीजन इसमें होता है, हमारे सेल्स फोर्स में क्या होता है सीजन होते हैं।
समर, स्प्रिंग और विंटर, 3 सीजन्स रहते हैं। और हर एक सीजन के लिए ना तीनों सेल्स फोर्स ही 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर निकालेगा, और उन 3 सेट में से ही आपके हर एक सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो आप जोन से एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि आप एडमिन एग्जाम देने जा रहे हो, तो एडमिन के तीनों वो जो है तीनों सेट डाउनलोड कर लो। वो तीनों सेट को 5 से 6 बार अटेम्प्ट करो अच्छे से, ठीक है, 5 से 6 बार अच्छे से तीनों पेपर को सॉल्व करो। तो उन अगर वो तीनों सेट अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, उसमें समझ गए कि क्या है, तो वो क्वेश्चन भी आपके उन तीनों सेट में से ही आएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। एक दो क्वेश्चन कभी आ भी जाए बाहर से तो आ जाए, बाकी 90% पेपर आपको इन 3 सेट के क्वेश्चंस में से ही आएगा। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, तो आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे, तो आपको कोई भी चीटिंग की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, अगर आपने वो बस डम्प्स अच्छे से पढ़ के गए हैं। ठीक है, ये चीज सेंस, मेरी बात ने सेंस बनाया। Yeah, just wanted to ask one thing. In this certification, if we are applying, what is the passing criteria? If you can share us some details on that. 70%, इट इज 60 और 70%। Okay. 60%, सॉरी। हाँ, 60% रहता है कि आपको 60% लेके आने ही आने एग्जाम में, Oh, तो it, आप it is it is सर्टिफाइड it हो। in terms of percentage or in terms of marks? So, परसेंटेज। percentage. Okay. Sure. हाँ, Thanks. ठीक है। तो उतना का लेके आना पड़ता है, तो आप क्लियर कर लोगे। पर जैसे मैंने बताया, काफी इजी रहता है सर्टिफिकेशन क्लियर करना, क्योंकि देखो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी चीज की, तो उसके बाद तो आपको सर्टिफिकेशन क्लियर तो कुछ भी नहीं, आपको बस वही वही 3 सेट ऑफ पेपर रहेंगे। 3 सेट ऑफ पेपर आपने अगर सॉल्व कर लिए, क्योंकि जैसे मैंने भी जितने भी सर्टिफिकेशन दिए ना, मैंने भी कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज तो अपने जब भी एक्सपीरियंस था कर लिया था। पर फिर मैंने वो 3 सेट ऑफ पेपर डाउनलोड करे एक दिन। आज के दिन में मैं पढ़ने बैठा हूँ वो 3 सेट ऑफ पेपर, 3 सेट पेपर आज पढ़ने बैठा, 2-3 घंटे में वो सॉल्व कर अच्छे से पढ़ के, ठीक है। और फिर एग्जाम दिया मैंने शाम को, एग्जाम दिया और एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था, बहुत इजीली क्लियर हो गया था, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ही मेरे को दिख रहे थे उस पेपर में। तो मेरे को मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, मैंने देखा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर ये था, तो सीधा टिक कर दिया। तो इसलिए, और ये चीज मैं बार बार एम्फोसाइज करूंगा, प्लीज चीटिंग मत करना, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड के साथ हो रखी है ये चीज। चाहे इतना ज्यादा लेवल पे नहीं हुआ कि सेल्सफोर्स से बैन कर दिया, पर हाँ उनका सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया था। उनको कहा था अब आप री अटेम्प्ट भी नहीं करोगे इसको, इसका आपको फ्रेशली अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, तो उनको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। और ये वीडियो पे आपको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। पहले आपके स्पेक्स उतरवा के आपको कहेंगे कि पूरे अपना करो, और अगर कभी उसके अंदर आपके ऊपर किसी को डाउट अगर आ गया सर्टिफिकेशन के टाइम, जो आपको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो वो आपके सामने आ जाएगा और आपको कहेगा पूरा अपना लैपटॉप उठा के पूरा हमें रूम दिखाओ, आपके रूम में क्या क्या पड़ा है। अगर उनको आपके रूम के अंदर कोई और स्क्रीन भी दिख गई ना, यहाँ तक कि चाहे वो स्क्रीन बंद भी क्यों ना हो, ठीक है, तो भी वो आपका एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं, उनको इतनी अथॉरिटी होती है। तो इसलिए कभी भी एग्जाम देना है तो एक क्वाइट एनवायरनमेंट में देना है, जहाँ पे कोई शोर ना हो, और ये मेक श्योर करना कि इंटरनेट अच्छा है हमारा, और कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ तक कि फोन भी ना, आप कोशिश ये करो अगर फोन दूसरे रूम में रख सकते हो तो रख लो, यही कोशिश करा करो। ठीक है। ऐसे ही अगर अब मैं जाऊँ सेल्फ और डेवलपर पे, ये देखो डेवलपर पे कितने सारे आपके सर्टिफिकेशन होते Ritik, हैं। in हाँ one जी। of the sessions when you are sharing your screen and showing your profile, I saw certain points or labels. Is it a part of an outcome of certification or exams that we give and we receive that? आप ये वाले पॉइंट्स कह रहे होंगे इसमें लिखा। Yeah, I couldn't recollect exactly, but I saw certain हाँ, points or labels here. ये वाले कह रहे होंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा मेरे को लगा। Right, 99 badges, correct. I forgot the nomenclature. Yeah, it's badges, correct. हाँ, है ना, तो इससे होता है ये कुछ नहीं, इसका भी एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। जैसे मैंने ट्रेल हेड, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है,
ट्रेल हेड एक कुछ नहीं, एक ना सेल्स फोर्स की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर जो सेल्स फोर्स है, जितनी भी कंपनी में सेल्स फोर्स यूज होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंपनीज ना आपसे पूछती है जब आप अप्लाई भी करते हो ना, तो आपसे पूछते हैं आपका ट्रेल हेड पे स्कोर क्या है, आपका ट्रेल हेड का प्रोफाइल का लिंक शेयर करो हमारे साथ, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उससे उनके ऊपर लगता है हाँ, इस एम्प्लॉय ने ये जो है, चाहे सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा, क्योंकि सर्टिफिकेशन कंपनी को भी पता होता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो एम्प्लॉय इसलिए भी अपनी पब्लिक अप्लाई नहीं करता सर्टिफिकेशन के लिए। पर हाँ, अब ट्रेल हेड के ऊपर उसने इतने सारे, जैसे मेरे इतने पॉइंट्स है, 88,000 पॉइंट्स है, करेक्ट। राइट। तो अब उनके ये होगा क्या, 88,000 इस एम्प्लॉय के पॉइंट्स है, तो इस और फिर नीचे आके वो देख लेंगे क्या क्या मैंने सुपर बैचेस कंप्लीट कर रखे हैं, कौन कौन से स्किल के ऊपर मैंने वर्क कर रखा है, ठीक है। तो इससे उन्हें आइडिया हो जाएगा इस एम्प्लॉय के अंदर ये सारे स्किल सेट्स हैं, तो ये हमारे लिए काम आएगा भी कि नहीं आएगा, आगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जॉब ओपनिंग है हमारे पास, उसके अंदर ये एम्प्लॉय अपने इनपुट दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, बस एक ऑथराइज वेबसाइट है सेल्सफोर्स की, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन फॉर्म ऑफ अ गेमिफाइड वे। इसमें आपको दिए जाएंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये भी मैं आपको कहूंगा, अपने इस ट्रेनिंग के हर एक डोमेन के बाद, ठीक है ना, जैसे अब हमारा एडमिन खत्म होगा या हमारा डेवलपमेंट खत्म होगा, तो इसके साथ साथ मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट क्या मतलब, मैं मेरे हिसाब से मैंडेटरी ही कर दूंगा मैं, कि जैसे अगर हम एडमिन खत्म कर रहे हैं तो ठीक है, तो सेल्स फॉर एडमिन का सुपर सेट जो होता है, सुपर बैच, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो, जब मैंने ट्रेनिंग करी थी ना, मेरी भी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी अपने राइट। स्टार्टिंग करियर के अंदर, पर मेरे पास ऐसा कोई ऑनलाइन ट्रेनर नहीं था, मेरे को तो उन्होंने बस ट्रेल हेड ही दिया था, मेरे को ट्रेल हेड का लिंक दे दिया था, कहा ये ट्रेल हेड है, आपको ये सारे स्किल सेट पूरे करने हैं और ये सारे सुपर बैचेस पूरे करने हैं, ठीक है। और ये चीज आपको फ्रैंकली एक चीज बता रहा हूँ, अगर एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना ये चीज पे काम करने के लिए, तो आपका जब भी फ्री टाइम होगा ना, जब भी आपके पास, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में हो, अब आपके पास टास्क नहीं है प्रोजेक्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा भी आता है प्रोजेक्ट में आपका वर्कलोड बहुत कम होता है, उसके लिए आप खाली रहते हो, कुछ टाइम आप बेंच पे भी रहोगे अपने करियर के अंदर, करेक्ट। एक राइट। प्रोजेक्ट खत्म होगा तो थोड़े टाइम के लिए हम बेंच पे भी होंगे। तो उस टाइम पे ना, अगर आपको एक बार इंटरेस्ट जाग गया इस पे काम करने के लिए, तो आप खुद से ही ट्रेलर खोल लिया करोगे और खुद से ही कहोगे चलो यार ठीक है, आज कोई ट्रेलर की मैं काम, थोड़ा बहुत स्किल्स पे काम कर लेता हूँ, अपने ट्रेलर के ऊपर ही काम करने लग जाता हूँ। तो बस ये चीज है, एक बार अगर इंटरेस्ट अगर आ गया ना किसी भी एम्प्लॉय का, तो वो, ये जैसे ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, मेरे को कभी किसी कंपनी ने नहीं कहा, कि मैं खुद से जब भी खाली बैठा होता हूँ ट्रेलर खोलता हूँ और काम करने लग जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ, चलो एक्सपीरियंस तो है ही ना, क्यों ना मैं अपने पॉइंट्स इस पे बढ़ा लूँ खाली बैठा हुआ। So with one training or one certification, we receive one badge. Is that so? तो सर्टिफिकेशन अलग थिंग है, ठीक है ना, और Okay. बैजेस अलग थिंग है। बैजेस क्या होते हैं, जैसे अगर तो मैं आपको बैजेस दिखाऊंगा, जैसे गो टू ट्रेलर मैंने कहा, ठीक है, हर एक अपनी ट्रेनिंग का अपना एक बैच होता है, हर एक स्किल सेट का अपना बैच होता है, और सुपर बैचेस क्या होता है, वो एक मिक्सचर ऑफ बैच, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बैचेस से एक सुपर बैच बनेगा, ठीक है ना। Mm-hmm. तो अब जैसे अगर मैं इस पे जाऊंगा, ओमनी स्टूडियो आर्किटेक्चर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये खोलता हूँ, तो ये इसके अंदर आपके 3 ट्रेल्स हैं, है ना, ये तीनों जब ट्रेल आप खत्म करोगे तो एक बैच मिल जाएगा आपको, बैच का क्या नाम होगा, ओमनी स्टूडियो आर्किटेक्चर। And all these are CBTs, right? ये inter इस पे it will be video based, correct? Learning. नहीं Or नहीं, वीडियो बेस नहीं, is it a थ्योरेटिकल, certification? आर्किटेक्चर, Okay. Okay. आर्किटेक्ट लिखा, आर्टिकल लिखा होता है इसके अंदर, Right. ठीक है। और वो आर्टिकल के बेसिस पे फिर नीचे क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो क्वेश्चंस आंसर करने होते Okay. हैं, ठीक है। तो वो है ये, तो हर चीज का अपना एक बेनिफिट रहता है। अ, बस वही है, सेल्स फोर्स का और ट्रेलर से ये बेनिफिट होता है, कंपनी के लिए ना काफी इजी हो जाता है एम्प्लॉय के बारे में जानना। Right. और Sharpening the मेरे पॉइंट, knowledge. हाँ, और मेरे पॉइंट से फिर भी मैं फ्रेंकली बताऊंगा, बहुत मतलब कम है, ठीक है ना अभी, तो मैंने बहुत लोग देखे जिनके 10-10 लाख पॉइंट्स भी होते हैं या 5 लाख पॉइंट्स होंगे। Oh. हाँ, तो इसलिए ये भी बहुत कम है पॉइंट्स, मैं इस पे वर्क करूंगा, कभी खाली होऊंगा तो मैं और बढ़ाऊंगा इन पॉइंट्स को, एटलीस्ट लाख पॉइंट्स करना है मेरे को इसको।
1 लाख पॉइंट्स। You're one short of century. या बस वही है तो अगर इस केस में लिखा भी है आपका, अभी जैसे इधर मेरे को इन्होंने दे रखा है एक्सपेंडिशनर, ठीक है, वो कह रहा है अगर एक बैच और कर लोगे तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, रोजर रैंक हो जाएगी आपकी, रेंजर, रेंजर हो जाएगी रैंक आपकी इसकी जगह, एक्सपेंडिचर की Right. जगह। तो वही अब मैं एक बैच और कंप्लीट करके फिर इसको कर लूंगा जैसे। और हर एक उसके ना पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने ये खोला आपका इधर, ठीक है, ओमनिश आर्किटेक्चर भी जैसे मैं किया, तो ना हर एक के अपने पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे लिखा है ना +300 पॉइंट्स। अगर आप ये तीनों कंप्लीट कर लोगे तो उसके 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट्स जल्दी गेन करना है तो सुपर बैचेस करा करो, जैसे अगर मैं इधर देखता हूँ And सेल्स what is the use फोर्स। of these points? Can we redeem these against any certification cost? नहीं 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 नहीं, ये बस पॉइंट्स नहीं, कुछ नहीं, वही बोला ना आपको, बस इतने tally. पॉइंट्स। Okay. हाँ, स्किल्स आपके पता लगते हैं कंपनीज को, Okay. ठीक है, सेल्स फोर्स एडमिन सुपर सेट, ठीक है, जैसे एडमिन का है उसका बेस्ट, ठीक है ना। नहीं, जो कर रहा है तो जैसे एक साइड है आपको सुपर बैचेस दिख रहे हैं ना, कि ये सारे सुपर बैचेस है हमारे ट्रेल हेड के ऊपर, हर एक के आगे उन्होंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये वाला कंप्लीट करोगे तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे, इसके 2000 पॉइंट्स हैं। ये वाला जैसे मैंने कंप्लीट कर रखा है एपेक्स वाला, तो इसके 13,000 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो सुपर बैचेस जैसे कंप्लीट करोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और सुपर बैच अगर आप खोलते हैं, हम ये जैसे एक महीने वाला कॉलेज में कंप्लीट कर रहा था, तो इसके अंदर ना कॉम्बिनेशन ऑफ वो होती है। तो इससे क्या होता है, पूरे का आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा कि आपको पूरे प्रोजेक्ट बनाना है। तो इससे उसके लिए पहले क्या कहता है, आपको ये वाला खत्म करा होना चाहिए, एपेक्स ट्रिगर वाला मॉड्यूल खत्म होना चाहिए आपका, एपेक्स टेस्टिंग वाला मॉड्यूल खत्म होना चाहिए, ए सिंक्रोनस एपेक्स खत्म होना चाहिए, ये सारे आपको खत्म होने चाहिए। और उसी के बेसिस, उसी के बाद आप आगे का जो है पार्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर जैसे उन्होंने दिया पूरा एक यूज केस बना के देंगे ये लोग आपको, क्या ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको ये काम करना है। यूज केस जैसे समझाया कि हमारी यूज केस क्या था, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी, और आप क्या करोगे इसके अंदर, तो वो सब चीजें आपको करनी है। और फिर हर नीचे सारे टास्क लिखे होते हैं, मैं तो कंप्लीट कर चुका हूँ तो इसमें मेरे को दिखेगा नहीं। या कोई और एक सेकंड स्क्रीन शेयर करेगा क्या, तो वो ये लिंक खोले, मैं आपको दिखा दूंगा एक अच्छा। कोई भी अगर स्क्रीन शेयर करना। हेलो। Have you shared that? I can do that. हाँ, एक स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। I'm sharing my screen. हम्म, Let me know if my screen is visible. लोड हो रही है, ठीक है। अब एक सबसे नीचे स्क्रॉल करना, बिल्कुल नीचे।
अच्छा हाँ, जैसे आपके में भी ये लॉग्ड है क्योंकि आपने अभी तक प्री रिक्विजिट कंप्लीट नहीं करा, ठीक है ना। प्री राइट। रिक्विजिट आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो जहाँ पे लिखा है रेडी टू टैकल दिस सुपर बैच, ठीक है, इसके नीचे ना आपको अलग अलग टास्क गिवन होंगे, ठीक ओके। है, कि 10 टास्क होंगे, कुछ होगा कि जब पहला दे दिया कि आप इस नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर नीचे उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिलेशनशिप डालो, ये एपेक्स क्लास लिखनी होगी हमें, तो वो सारे वो टास्क देते हैं आपको। वो सारे टास्क आप अपनी जब और में कंप्लीट करते रहोगे तो उसके साथ एक ऑप्शन आता है वेरीफाई दिस स्टेप, ठीक है। जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे वेरीफाई दिस स्टेप वाले बटन पे, तो आप क्या कहते हैं उसे, हाँ, जब तो वो वेरीफाई करेगा आपने जो क्लास लिखी है या जो भी आपने ट्रिगर लिखा है, तो वो आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा होगा सही तो आपको उधर मिस्टेक बताएगा कि ये आपका एरर है इसमें, तो एरर आपको फ्लैग। अपना एरर, हाँ, तो एरर दे देगा आपको, तो आपको एरर सॉल्व करना है, फिर दोबारा से वेरीफाई करो और क्लियर करो इसको। तो एंड सारी इज जगह दिस पता है, टाइम बाउंड? आई सी 12 आवर्स ओवर हियर। नहीं नहीं, ये इन्होंने एवरेज टाइम दिया होता है कि 12 आवर्स लोगों ओके। को लगते हैं कंप्लीट करने में, ये वाला सुपर बेंच। So this is kind of a practical exercise which would help us to, kind हाँ of work on हाँ that, and also it will be add to our org, so we can, go back हाँ and reflect on it. What are the हाँ, errors करेक्ट, and हाँ other thing? Okay, हाँ, कि कब हमें एपीएल साइड पे क्या एरर आया था okay, या क्या है, तो वो सब चीजें भी होती है। this तो is good. इसलिए तो, हाँ, तो ये काफी अच्छा है, तो इसलिए मैं कह रहा था जब भी हम एक डोमेन खत्म करेंगे ना, Yeah, देखो अब पर, देखो सुबह के ने 12 आवर्स दिए, तो आप जब खुद से करोगे ना, देखो करवाने को तो मैं आपको हाफ एन आवर में कंप्लीट करवा दूंगा क्योंकि yeah. जैसे मैंने क्लियर कर रखा है, पर अगर ये आप We'll have खुद to do से it on अटेम्प्ट our करोगे, own. Yeah. हाँ, अगर खुद से करोगे तो आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, कहीं अगर अटक गए तो उसके लिए आई एम देयर कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस चीज के अंदर। Hmm. तो इसलिए मैं कहूंगा ट्रेनिंग के साथ साथ जो मैं बताऊंगा ट्रेनिंग के अंदर वो तो आप करो ही करो, तो उसके साथ साथ ये ट्रेलहेड पे भी देखते रहना, ट्रेलहेड पे भी उस टॉपिक का सर्च करना कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ट्रेलहेड पे कौन सा मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे एडमिन के अंदर भी हम स्टार्टिंग के अंदर ही एडमिन पे थे, जब हम फ्लोस पे आए जैसे एडमिन में, तो फ्लोस से रिलेटेड कौन सा मॉड्यूल है ट्रेलहेड पे, तो वो भी आप साथ साथ क्लियर करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक आपके उधर पॉइंट्स भी बढ़ते रहेंगे, बैजेस मिलते रहेंगे आपको, ठीक है, और एक आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, Yeah, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साइड बाय साइड। तो इसलिए, तो ये मैं कह रहा था कि इसलिए मैं कह रहा था ट्रेलर पे भी साथ साथ फोकस करना और ट्रेलर भी साथ साथ करते रहना। absolutely. Should I give back control back? हाँ, Okay, unshared. तो बस मेरा आज के लेक्चर के लिए यही सब था, तो मैं सोचा था मैं आज ये सब चीज शेयर करूंगा सबको कि क्या क्या हमारे करियर पाथ्स होते हैं सेल्स फोर्स में, और हमारे ट्रेनिंग में हम क्या क्या करेंगे, मेरे को उसका एक ओवरव्यू देना था। बाकी कल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा आज तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने क्या क्या काम करा है। मैं दिखा तो नहीं सकता सीआरएम पे लॉगिन करके अपने क्लाइंट साइड वालों पे, वो उसका मेरे को एक्सेस नहीं है, पर मैं एक नोटपैड पे डायग्राम में बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्या क्या काम करा, तो उससे भी आप सबको पता लगेगा कि कैसे क्या टास्क आते हैं इन फ्यूचर हमारे पास, ठीक है। Right. हाँ, तो अगर आज वाले सेशन पे कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी। No, this was quite helpful and informative. Thanks for taking us through this. नॉट तो, और किसी को कोई डाउट है इसमें, शुभम, विनायक, एनीवन? No, Ritik. और हाँ, जैसे कल भी ग्रुप पे ही बोला गया था, आई होप कि सब लोग ये सेशन या ये ट्रेनिंग होगी लैपटॉप और उससे ही अटेंड करेंगे। Yeah, noted. Since we are on हाँ laptop. Yeah. हाँ, क्योंकि फोन से अगर आप ज्वाइन करोगे तो उतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होने वाला है आगे जाके, तो आप फोन पे वो चीजें कर नहीं पाओगे इम्प्लीमेंट True. जो मैं आपको कहूँगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर सबसे कि प्लीज लैपटॉप और कंप्यूटर से ही आना ये ट्रेनिंग में। Yes. अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर ये कॉल वाइंड अप कर सकते हैं हम। Super. ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन।